Welcome back, dear aspirants, on English Zone. Here we are with a special class related to English literature, जहाँ पे आप TGT PGT से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्लासेस होंगी यहाँ पे आज की सेशन में। और अपकमिंग सेशन में, क्योंकि पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्व पेपर से रिलेटेड, यूपी टीजीटी पीजीटी अपकमिंग जो एग्जाम आपका होना है उससे रिलेटेड होगा ये क्लास। इसके साथ ही साथ अपकमिंग एग्जाम्स डी ट्रिपल एस पी केवीएस एनवीएस और स्टेट लेवल के जो भी आपके एग्जाम्स है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, उनको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए स्पेशल क्लास आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए इस चैनल इंग्लिश जोन पे अवेलेबल है। क्वेश्चन का आंसर देने का टाइम आप सभी एस्पिरेंट्स के पास होगा, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आप आंसर करिएगा। उसके साथ ही साथ मैं आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करूंगी उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का, जो कि आज की इस क्लास में हमने इंक्लूड कर रखा है। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। एंड हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ऑल दी इन Langlands, Piers and Plowman, Piers appears finally as. Yes, we have the options here. Option A, B, C, D. Friends, you have to tell the right answer. You have time to tell the right answer. आपके पास समय है, आप बता सकते हो। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ so that you can answer it correctly. आपके पास आपको इस ऑप्शन में से बताना है लैंगलैंड्स की जो पोएम है वर्क है पियर्स एंड प्लोमैन, उसमें पियर्स फाइनली किस फॉर्म में किस रूप में वो अपीयर होता है। यस, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द राइट आंसर हियर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यस फ्रेंड्स, दिस इज द राइट आंसर। जीसस के फॉर्म में वो अपीयर होते हैं पियर्स जो हैं पियर्स एंड प्लोमैन के ऑफ लैंगलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, it is decided that each Canterbury pilgrims would tell in all. This question, most of you is known about this question and about the answer of this question. It is decided that each Canterbury pilgrims, Canterbury Tales में जो pilgrims जो वहाँ पे धर्मार्थी थे, from they were going Canterbury Tales to pay tribute, to pay at the shrine of the Canterbury, and how many stories each of the pilgrims has to tell in their way and in their from their return of that Canterbury. We have the option A, B, C, D, and the correct answer is option D. Option D is the correct answer. 4 stories. Each pilgrims has to tell 4 stories. 2 stories from going to Canterbury shrine and 2 stories from returning from there, and total the answer is option D. 4 stories they had to tell, and total number of the stories would had been 120, because there were 30 pilgrims and each has to tell 4 stories, but only 24 stories were finished by Geoffrey Chaucer in Canterbury Tales. Right now we have in History of English Literature from of the book of the Canterbury Tales. Next question we have, Venus and Adonis is a long narrative poem by. This is a long narrative poem. Who composed this poem? We have option A, B, C, D. And Venus and Adonis जो poem है in long narrative poem form में है, narrative form में है, and narrative is the poem is called in which there is a story, जहाँ पे एक story होती है, and story is in long story, that is called the narrative poem, जिसमें narration होता रहता है like a story, one story and then other story is connected with that, and it is in story form. The poem which is in story form, that is called narrative poem. And we have the option and the correct answer. Please answer it. Option A. Yes friends, option A is the correct answer. William Shakespeare has composed this poem Venus and Adonis in a long narrative form. Next question number 4, we have the total number of poems in Shakespeare's sonnet we have. How many poems, how many sonnets William Shakespeare has written in his lifetime, in his literary career? And yes, this is very easy question, and you have to tell the answer. And option D, answer is the D. Option D is the correct answer. 154 sonnets he has written, and 37 plays he has written, and 2 narrative poems William Shakespeare has written, composed. Next poem
Question number 5th of this video. Lawrence Stern Tristram Shandy contains how many volumes? This work of Lawrence Stern, who was the one of the four pillars of English novel. Lawrence Stern was one of them, and Tristram Shandy was in how many volumes? Please answer correctly and please fastly attempt this question. Now I am going to tell you the answer of this question. Option B, 9 volumes. Answer B is the correct option. Option B is the correct answer, and it was in 9 volumes. The work of Lawrence Stern, Tristram Shandy, this was in 9 volumes overall. Number 6 of the video we have here. Which of the following is written by Samuel Butler? Yes friends, Samuel Butler ने कौन से वर्क लिखा है of these four options, out of these four options, and you have to tell the right answer. You have time to tell the right answer and right option. Option A, B, C, D. Which one is the correct answer? And now I'm going to tell you the right answer. Answer C, Hudibras. This was the poem composed by Samuel Butler. This was composed by Samuel Butler, and this is the work of the great writer Samuel Butler. Next question we have question number 7. Which of the following poem did Milton write in octosyllabic couplet? Yes, octosyllabic couplet में out of these four options, which one is written in by Milton in octosyllabic couplet? A, B, C, D. These are the options, and these all are poems composed by Milton, and you have to tell the right answer. And क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, एल पेंसोरेसो. एल पेंसोरेसो इज द पोएम कंपोज्ड बाय मिल्टन एंड इट वाज रिटन इन octosyllabic couplet. Friends, octosyllabic couplet है a verse, a line of verse which is written in 8 syllables, which has 8 syllables in a line, that is called octosyllabic, and it was in couplet form, rhyming scheme. Two rhymes rhyme with each another. Next, question number 8. Which of the following play is not written by Congreve? विलियम कॉन्ग्रीव ने कौन सा वर्क है इसमें से out of these four options which is not written by him? We have to tell the right answer, and the right answer is option D, The Relapse. The Relapse is not written by William Congreve. All are written by Love for Love, The Old Bachelor, and The Way of the Word. These all are the work of the William Congreve. Next question. Dryden All for Love is an adaptation of option A, B, C, and D. These are the options, and you have to tell the right answer of this question. Dryden's All for Love is an adaptation of option C. Option C is the correct answer. Antonio and Cleopatra. This work was adopted by John Dryden to compose his work All for Love. Next question number 10 of this video we have. Which of the following book proposes a political theory? Yes. Out of which Principia, Leviathan, Anatommy of Melancholy, and Liberty of Professing, these out of four works, which one is related to the political theory, which has a concept related to political theory? And the option we have, and the correct answer here I'm going to tell you all. Option B. Option B is the correct answer. Leviathan. This was the work of Thomas Hobbes. Thomas Hobbes का ये work है, and this book of Thomas Hobbes, Leviathan, is related to political theory. Question number 11 of this video. Which of the following books is written by a woman? कौन women ने, किस lady writer ने, out of these four options, work is written by a lady writer? जो women writer हैं उन्होंने कौन सी बुक इसमें से out of these four options में से कौन सी बुक लिखी हुई है? आपको इसके क्वेश्चन का आंसर बताना है. And we have option: A Benediction of the Rights of Women, Social Contract, A Treatise of Human Nature, and The Wealth of Nation. These all
are the options, and I'm going to tell the right answer. Right answer is option A. Yes, friends. Option A is the correct answer. A vindication of the rights of women is written by a lady writer, and her name was Mary Wollstonecraft. Yes, this was the name of the writer who had written this work. And social contract Jean Jacques Rousseau ने लिखा है. A treatise of human nature is written by David Hume, and Wealth of Nations is written by Adam Smith. All the three options answer I have told you by the whom this work, Social Contract, A Treatise of Human Nature, and Wealth of Nation was written. But the woman writer who had written A Vindication of Rights of Women was Mary Wollstonecraft. Next question we have, and the next question: which of the following book books by Jonathan Swift is a religious allegory? Option A, B, C, and D. We have the options, and the correct answer is option D. A Tale of Tug. This is the right answer. A Tale of Tug is a religious allegory written by Jonathan Swift. Next, we have which of the following is a visionary work by William Blake? William Blake का visionary work है. Out of these four, which one was that? A, B, C, and D option है. And we have the correct answer. क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है. यस, द विजन ऑफ द डॉटर्स इज द विजनरी वर्क ऑफ विलियम ब्लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 of this video we have Pope's An Essay on Man is based on the ideas of A, B, and C, D. We have the option here, and you have to tell the right answer, friends. Please go for that. Go for the right answer. You must have given it. And the right answer of this video, of this question, also question number 14 of this important MCQs of TGT PGT exams, we have option C, Lord Bolingbroke was the idea. This is the based on the ideas. Pope had written an essay on man is based on the ideas of the Lord Bolingbroke. Question number 15 of this video, which of the following work by Johnson is an imitation of the 10th satire of Juvenal? The correct answer is option B, Vanity of Human Wishes. This is the imitation of the 10th satire of Juvenal, and it was written by Johnson. Samuel Johnson has written this work. We have the question number 16 of this video. The final version of Wordsworth, the prelude, appeared in William Wordsworth prelude, which was appeared in which this the last version of this work prelude was appeared. We have the option A, B, C, and D, and the correct answer of this question we have here. Please, friends, go for the right answer. And now it's my turn to tell you the right answer. And in the year 1850, the death year of William Wordsworth, he was died in 1850, and in that year, the final version of Wordsworth Prelude appeared. Next question number 17. To suffer woes which hope thinks infinite is a written by whom? Yes, this was the line written by whom. And option A, B, C, D we have. And the correct answer of this question is option A, Shelley. P.B. Shelley has written this line, and this was the work of P.B. Shelley. Number 18 of this video, a thing of beauty is a joy forever occurs in. This is very famous line from the work of John Keats, and from which poem of John Keats this was taken. This line was written in which poem of John Keats? We have the option A, B, C, and D, and you must have given the right answer of this question, friends. क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को. एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Endymion is the work, and in from this work this line, a thing of beauty is a joy forever, is taken. Next question number 19 of the video, which of the following novel is satire on Gothic novel? गोथिक नॉवेल पे सटायर जो है वो कौन सा वर्क है, कौन सा नॉवेल है? प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एंड नॉर्थएंजर एबे.
These all are the work of Jane Austen. Jane Austen was the women novelist of English literature, and of romantic age. She has written these four novels, and all these four novels was written by Jane Austen. And the right answer जो सटायर है ऑन गोथिक नॉवेल पे, दैट इज ऑप्शन डी, नॉर्थएंजर एबे. नॉर्थएंजर एबे इज द राइट आंसर, एंड दिस इज अ novel of Jane Austen, is a satire on Gothic novel. Next question number 20, and this is the last question of this video of the first part of the important MCQs of related to TGT PGT exams of DSSB, KVS, NVS and all state level exams. Who distinguished between the literature of knowledge and literature of power? We have option Coleridge, De Quincey, Hazlitt, and Lamb, who had distinguished the difference between the literature of knowledge and literature of power. And the correct answer is option B. Option B is the correct answer. Thomas De Quincey. De Quincey has distinguished between the literature of. Whom did Dr. Johnson consider the father of English criticism? English criticism का father किसको consider किया जाता है? And according to Dr. Johnson, और उनको हम father of English criticism बोलते हैं, तो आपको उनका नेम बताना है, उस critic का नेम बताना है. Options है Sir Philip Sidney, option B फ्रांसिस बेकन, ऑप्शन सी जॉन ड्राइडन, या ऑप्शन डी है बेन जॉनसन. और जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का आज के वीडियो का, वो हमारा लिटरेचर का है, और उसका जो करेक्ट आंसर मैं बता रही हूँ आपको, दैट इज ऑप्शन सी डॉक्टर जॉन ड्राइडन. John Dryden is considered as the father of English criticism and by Dr. Johnson, Dr. Samuel Johnson. Next number second question we have here. Second question है कैडमोन एंड स्निवुल्फ आर. क्या है ये दोनों जो यहाँ पे नेम दिया गया है इन दोनों का, कैडमोन एंड स्निवुल्फ का, तो ये क्या है? एंग्लो सैक्सन पोएट्स हैं, रोमांटिक पोएट्स हैं, एलिजाबेथन पोएट्स हैं, या विक्टोरियन पोएट्स हैं? फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके सिलेबस में है, इसीलिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं. तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वो आपका कहीं से भी क्वेश्चन पिक कर सकता है, किसी भी एज से पिक कर सकता है. तो इसीलिए आप अपना वो पार्ट भी प्रिपेयर रखो. जो राइटर्स ऑथर्स हैं टीजीटी के, उनके साथ साथ आप ये पार्ट भी अपना प्रिपेयर रखोगे. तो कैडमोन एंड स्निवुल्फ की बात करें तो वी कंसीडर हिम, ही दे वर एज द एंग्लो सैक्सन पोएट्स. तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. थर्ड क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. वी हैव हु वाज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में फादर ऑफ पोएट्री किसको बोलते हैं हम? जॉन गोवर्ड, विलियम लैंगलैंड, जॉफ्री चौसर, या बियोल्फ. और करेक्ट आंसर जो आज का है वो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, दैट इज जॉफ्री चौसर. Number fourth is we have here on the screen the War of Roses. यहाँ पे है War of Roses की बात हो रही है. Took place during the period. किस टाइम ड्यूरेशन पे War of Roses जो था वो एक तरीके के एंड ऑफ सर्फडम जो था चौसर के टाइम पे ये हुआ है. तो आपको बताना है कि ये किस पीरियड में हुआ था. मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात हो रही है, बट ईयर को आपको डिफाइन करना है, स्पेसिफिक ईयर को मेंशन करना है. किस ईयर में हुआ था ये? 1380 to 1410, 1455 to 1485, 1400 to 1430, या 1425 to 1455. और क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी, 1455 से लेकर के 1485 के मिड में द वॉर ऑफ रोजेस टुक प्लेस. नंबर नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन, वो है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन. जॉन विक्लिफ इज कॉल्ड. जॉन विक्लिफ को हम क्या बुलाते हैं? The morning star of Renaissance, फर्स्ट ऑप्शन है. ऑप्शन बी है the morning star of Reformation. ऑप्शन सी the morning star of Romanticism, या ऑप्शन डी है morning star of Classicism. इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आते हैं. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, जॉन विक्लिफ इज कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन. ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है. एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6. Spenser has been hailed as the poet's poet by whom? किसने एडमंड स्पेंसर को एज अ पोएट इनको बुलाया है, या इनको एक तरीके का उपाधि दी है, एक टाइटल दिया है? आपको इसका आंसर देना है, और मैं ऑप्शंस आपको वॉल्टर पेटर, वॉल्टर हेरेशियो पेटर,
ऑप्शन बी मैथ्यू एर्नोल्ड, ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब या ऑप्शन डी जॉन रस्किन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है आज का फ्रेंड इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो का, तो वो हमारा है ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब, हु वाज द ग्रेट एसेइस्ट। और इलिया पेन नेम से ये जाने जाते हैं, एसेज ऑफ इलिया इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है एसेज का। और इन्होंने एडमंड स्पेंसर को एज पोएट्स पोएट इनको हेल्ड किया है, इनको एक तरीके का टाइटल दिया। नंबर 7 इज वी हैव हियर द फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन, किस ईयर में ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल किंग जेम्स ने जो लिखा है उसको वो पब्लिश करा गया, आपको बताना है 1611, 1613, 1612 या 1614। और इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए है 1611 में ये पब्लिश हुआ था, द फर्स्ट ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल। नेक्स्ट नंबर 8 वी हैव द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टुक प्लेस। रेस्टोरेशन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है, 18th सेंचुरी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है ये, जिसमें हम बात करते हैं कि किस ईयर में ये चार्ल्स सेकंड ने रेस्टोरेशन जो पीरियड था, रेस्टोरेशन टाइम था, तो किस ईयर में चार्ल्स सेकंड वो हुआ, चार्ल्स सेकंड का रेस्टोरेशन किस ईयर में हुआ था, आपको इसका आंसर देना है 1655, 1665, 1660 या 1670। तो करेक्ट आंसर हमारा है 1660 से रेस्टोरेशन हुआ था चार्ल्स सेकंड का, एंड विद दिस ईयर रेस्टोरेशन एरा स्टार्टेड। ठीक है, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा, इसको रेस्टोरेशन एरा जो था वो हमारा 1660 से स्टार्ट हुआ था। नंबर नेक्स्ट वी हैव हियर 9 number question, the theaters were reopened in 1660, when were they closed last, कब वो closed हुए थे, क्योंकि कुछ टाइम ड्यूरेशन था, थिएटर को इंग्लैंड में क्लोज कर दिया गया था जब प्यूरिटन्स ने अपना राज्य किया था, उनका रूल ओवर था इंग्लैंड में, रूलिंग टाइम था। तो आपको बताना है कि किस टाइम पे थिएटर को क्लोज कर दिया गया था, और जबकि ये रीओपन हुआ था 1660 में, तो उस ईयर का आपको नेम बताना है 1605, 1642, 1610 या 1650। और ये टाइम था जब मिल्टन अपने वर्क्स को लिख रहे थे, वो जो पोएट थे, तो टाइम वाज 1642। 1642 में थिएटर वर क्लोज्ड and it was reopened in the year 1660 when restoration of Charles II happened and restoration era started. Number 10 question जो है, Nobel Prize for Literature is awarded, कौन देता है नोबेल प्राइज और जो लिटरेचर का होता है या लिटरेचर के लिए, उसका आंसर आपको देना है द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, द अमेरिकन अकेडमी, द नोबेल अकेडमी ऑफ अवार्ड्स, रॉयल अकेडमी ब्रिटेन। तो आप सभी को पता है कि नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो जो देता है, एक जो इंस्टीट्यूशन है, एक जो संस्था है, एकेडमी है जो ये अवार्ड देती है, दैट इज नोन एज द स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे। ठीक है, एंड अल्फ्रेड नोबेल वाज द मैन जिसके नेम के बिहाफ पे ये प्राइज दिया जाने लगा, और ये आपका लिटरेचर, साइंस, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और पीस, इन सभी फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। जो इस फील्ड में अच्छा काम करते हैं या कुछ इनोवेटिव काम करते हैं, उनको ये अवार्ड से, प्रेस्टिजियस अवार्ड से उनको ऑनर दिया जाता है। नंबर 11 क्वेश्चन, द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नंबर अवार्डेड बाय, द बुकर प्राइज होता है जो बेस्ट ओरिजिनल नंबर होता है उसको अवार्ड दिया जाता है, कौन देता है, कौन सी संस्था ये अवार्ड देती है, आपको इसका आंसर देना है। और 11 नंबर क्वेश्चन का वो जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, मैन ग्रुप, गिल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड, द स्वीडिश अकेडमी नॉर्वे, द अमेरिकन अकेडमी या द फोर्ड फाउंडेशन। और जो करेक्ट आंसर है 11 क्वेश्चन का वो हमारा ऑप्शन ए है, मैन ग्रुप, गिल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड, ये प्रोवाइड करता है ये अवार्ड, बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल वर्क। नंबर 12 इज द अलेक्जेंड्राइन इज अ वर्ड्स लाइन इन, क्या होता है अलेक्जेंड्राइन होता है, अलेक्जेंड्राइन जो लाइन, अलेक्जेंड्राइन जो लाइंस हैं, वर्ड्स लाइन है, ये वर्ड्स फॉर्म में लिखी जाती है, पोएटिक लाइंस है, तो ये क्या डिफाइन करता है, मींस इसका क्या पैटर्न होता है, आपको उसको बताना है। एन आइम्बिक हेक्सामीटर है, एंड आइम्बिक पेंटामीटर, एंड आइम्बिक डाइलेक्ट्रिक टेट्रामीटर या टॉर्साइक हेक्सामीटर। और 12 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा एन आइम्बिक हेक्सामीटर। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अलेक्जेंड्रिन जो कि स्पेंसेरियन स्टैंजा में यूज होता है, अलेक्जेंड्रिन 9th लाइन होता है और इसको आइम्बिक हेक्सामीटर में ये लिखा जाता है। ठीक है,
Number 13 is we have here words of two lines length rhyming with each other at the end is called. आप सभी इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए मुझे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत इजी है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपके पूछे जाते हैं, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इन सब क्वेश्चंस को माइंड में रखिएगा, इसके आंसर्स क्वेट्रन, कॉपलेट, टर्जा रिमा या ओटावा रिमा, और जो करेक्ट आंसर है वो rhyming with each other at the end is called couplet. ठीक है, नंबर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का. क्वेश्चन नंबर 14 इज एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ दी. अभी मैंने बात की अलेक्जेंड्राइन की जो लास्ट लाइन होती है, आपको बताना है किसका कौन से फॉर्म की, ओटावा रिमा की, राइम रॉयल की, स्पेंसरियन स्टेंजा या टर्जा रिमा, और जो इसका 14 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, स्पेंसरियन स्टेंजा की ये लास्ट लाइन होती है, और स्पेंसरियन स्टेंजा जो होता है वो 9 लाइंस में लिखा जाता है. ठीक है, ये 9 लाइंस में पोयम कंपोज होती है. जैसे आप स्पेंसरियन स्टेंजा की बात करो तो जो एक स्टेंजा में 9 लाइंस होती हैं, फेरी क्वीन जो एडमंड स्पेंसर ने लिखा है ये स्पेंसरियन स्टेंजा में ही लिखा है, एंड Spencer Stanza has invented these lines, that's why it is known as the Spencerian stanza. इनके नाम के बिहाफ पे इस नेम का पड़ा है क्योंकि इसको उन्हीं ने इन्वेंट किया था, एडमंड स्पेंसर ने, और फेरी क्वीन में बहुत ही ब्रिलियंटली इसको यूज करा है. तो अलेक्जेंड्राइन की बात हो रही है, अलेक्जेंड्रिन की, तो ये है 9 लाइन होती है और स्पेंसरियन स्टेंजा में इसका यूज होता है. नेक्स्ट वी हैव टर्जा रिमा इज अ स्टेंजा ऑफ. टर्जा रिमा में कितनी लाइंस होती है, टर्जा रिमा जो स्टेंजा फॉर्म होता है उसमें कितनी लाइंस होती है, आपको बताना है 4, 3, 5 लाइन या 2 लाइंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी. और ये आप देखिए पोएटिक के जो प्रोसीडी आपके होते हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पोएटिक फॉर्म क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ जो आपके राइमिंग पैटर्न्स होते हैं पोएट्री के उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे. इसीलिए ये क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, और जल्दी से इसको एक तरीके से आप रिवाइज कर लो, क्योंकि आई नो आप सभी ने इसको पढ़ रखा होगा, बार बार आपने अदर वीडियोस पे या अपनी बुक में खुद देख रखा होगा, बट एक बारी आपका रिवीजन हो जाए इसीलिए मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड करा हुआ है. तो टर्जा रिमा की बात कर ली हमने, इट हैज अ 3 लाइन इन अ स्टेंजा. नंबर 16 इज ऑन द स्क्रीन. अब स्पेंसरियन स्टेंजा की बात आ गई यहाँ पे. स्पेंसरियन स्टेंजा हैज, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत अटेम्प्ट मत करना आप सभी. और इसका जो राइट आंसर है वी हैव हियर 4 लाइंस, 8 लाइंस, 6 लाइंस या 9 लाइंस, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 9 लाइंस. नंबर 17 इज एन iambic pentameter line contains. iambic pentameter में कितनी लाइन कंटेन्स जो होती है उसमें क्या फीट का पैटर्न होता है, कितने फीट होते हैं, सिलेबल्स क्या होता है उसका पैटर्न, आपको उसको बताना है. 5 फीट, 9 फीट, 7 फीट या 6 फीट. और इसका जो करेक्ट आंसर है iambic pentameter में जो लाइन कंटेन्स होती है उसमें जो फीट होता है इट हैज अ ऑप्शन ए. 17 का जो हमारा है वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, इट इज हैज अ 5 फीट. अभी इसकी राइमिंग पैटर्न की बताऊंगी कि स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस का क्या, जितने सिलेबल होते हैं उनका क्या पैटर्न होता है. नंबर 18 इज आ गया क्वेश्चन, iambic pentameter implies which of the following. क्या इम्प्लाई करता है iambic pentameter, जैसे मैंने बात की कि 5 फीट होते हैं iambic pentameter में, और इसमें क्या होता है 5 syllables in a pattern unstressed stress, 5 syllables in a pattern stress unstressed, 5 patterns stress unstressed repeated 5 times, या 5 patterns unstressed stress repeated 5 टाइम्स. तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस बार बार आपका हो रहा है क्वेश्चन में, तो इस चीज को एक बार माइंड में आप बिठा लो कि जो भी राइमिंग iambic pentameters होते हैं उसमें 5 फीट होता है, और उनका जो सिलेबल का पैटर्न होता है वो है हमारा ऑप्शन डी. ठीक है, ये हमारा है. अनस्ट्रेस्ड होते हैं स्ट्रेस सिलेबल्स रिपीटेड 5 टाइम्स. ठीक है, मतलब ओवरऑल 10 सिलेबल्स होते हैं इसमें, और उसमें पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आता है, उसके बाद स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस. ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो होगा अनस्ट्रेस आएगा 1, एंड फिर 1 होगा स्ट्रेस का 1, फिर सेकेंड होगा अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस होगा ये सेकेंड, फिर थर्ड होगा अनस्ट्रेस. ऐसे ही हमारा 5 टाइम्स ये जाएगा. 5 मींस ये हमारा हो गया एक सिलेबल 1 टाइम जा रहा है, तो आप 2 सिलेबल्स 1 टाइम जाएंगे यहाँ पे अनस्ट्रेस स्ट्रेस सिलेबल. तो दैट्स व्हाई इट शुड हैव बीन, आप यहाँ पे ये मत करेक्ट करके आइएगा, 5 syllables in a pattern stress and unstress, but pattern unstress
स्ट्रेस रिपीटेड 5 टाइम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 19 की। एंड आइम्बस कंसिस्ट ऑफ, आइम्बस में क्या चीजें होती हैं इसका आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अब दिखेगा एंड आइम्बस कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है आइम्बस का जो पैटर्न होता है, वन अनअसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय असेंटेड सिलेबल्स, वन असेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय अनअसेंटेड सिलेबल, या आपका वन टू अनअसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय वन असेंटेड वन, एंड टू असेंटेड सिलेबल्स फॉलोड बाय अनअसेंटेड वन। तो आइम्बस का जो हमारा कंसिस्ट होती है, जो लाइंस इसमें होती हैं, उनका जो सिलेबल पैटर्न होता है, 19 का जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ठीक है। वन अनअसेंटेड बाय असेंटेड सिलेबल या असेंटेड वन। नंबर 20 क्वेश्चन है, ये व्योल्फ से रिलेटेड है, व्योल्फ एपिक पोएम की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि व्हाट इज व्योल्फ, फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम, या फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल, फर्स्ट इंग्लिश एशे। और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक पोयम, ठीक है। नंबर 21 फ्री वर्ड्स की बात आ गई है। फ्री वर्ड्स ये आपका फिर से पोएट्री से रिलेटेड, पोएट्री के जो भी स्टैंजा फॉर्म या उनके पोएटिक जो राइमिंग एंड जो भी आपका रिदमिक पैटर्न्स होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ये। तो फ्री वर्ड्स इज अ पोएट्री रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, कंफर्मिंग ऑफ to no regular meter, having neither depth nor कमिटमेंट, रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। तो फ्री वर्ड्स होती हैं, उसमें जो होता है ये होता है कोई भी रेगुलर मीटर फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे ब्लैंक वर्ड्स में आपके आमिक पेंटामीटर में लिखा जाता है अनअसेंटेड असेंटेड सिलेबस फॉलो करता है, लेकिन उसमें कोई राइमिंग नहीं होता है। बट यहाँ पे है कोई भी मीटर आपको फॉलो नहीं करना है। अगर आप फ्री वर्ड्स लाइन लिख रहे हो, फ्री वर्ड से रिलेटेड पोएट्री लिख रहे हो, तो आपको मीटर का ध्यान नहीं देना है या मीटर के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना है। तो ऑप्शन बी 21 हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा इसका। नंबर 22 देखिए ब्लैंक वर्ड्स की भी बात आ गई, यहाँ पे हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे ब्लैंक वर्ड्स, और इसका आ गया यहाँ पे सामने आप सभी के। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है आपको इसका आंसर देना है। राइम्ड आइमिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आइमिक पेंटामीटर, डायक्लिक टेट्रामीटर या एनापेस्टिक हेक्सामीटर। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया इस क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस क्वेश्चन फ्री वर्ड्स में, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी अनराइम्ड आइमिक पेंटामीटर। इसमें मींस कोई लाइंस जो होती हैं जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी जाती हैं वो लाइंस एक दूसरे से राइम नहीं करती हैं, एक दूसरे के कपलेट नहीं बनाती हैं, बट इनमें जो एक पैटर्न होता है मीटर का वो होता है आइमिक पेंटामीटर में, अनअसेंटेड असेंटेड सिलेबल को फॉलो करता है। और ब्लैंक वर्ड्स जो है वो हमारा पैराडाइज लॉस्ट जो है ग्रेट एपिक पोएम, ये हमारी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, ठीक है। आप सभी को ये आंसर पता होगा। नेक्स्ट नंबर 23 पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय। पुलित्जर प्राइज जो होता है, जो भी आपको इसमें नॉवेल से रिलेटेड मिलता है पुलित्जर प्राइज, तो आपको बताना है कि आपको ये किस में दिया जाता है, कौन इसको अवार्ड देता है। द अमेरिकन गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ अमेरिकन आर्ट्स एंड लिटर्स, द फोर्ड फाउंडेशन, या आपका है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। एंड 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क इसको अवार्ड को देती है, जो भी इस पुलित्जर प्राइज के लिए जो हकदार होते हैं या जो पुलित्जर प्राइज के लिए जिन्हें नॉमिनेट या जिनको विनर चुना जाता है, वो अवार्ड दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के थ्रू। नंबर 24 इज ऑन द स्क्रीन। वी हैव किंगस्टन प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कब प्रिंटिंग प्रेस ये एस्टेब्लिश हुआ था इंग्लैंड में, तो आपको इसका आंसर देना है 1476 इज द करेक्ट आंसर। नंबर नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन जो 25th है, लिटरेचर का ही हमारा क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय किंगस्टन प्रेस। किंगस्टन प्रेस ने जो फर्स्ट बुक पब्लिश करा था इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रिंट किया था, आपको बताना है कि वो कौन सी बुक थी। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ग्रीस या बाइबल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय इज द करेक्ट आंसर, जो कि किंगस्टन के थ्रू ये प्रिंट हुआ था। चलिए नंबर 26 की बात कर लें, और यहाँ पे हम ग्रामर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं अब। तो आपको इसमें बताना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें जो आपका आएगा वो आपको फिल करना है। I haven't been to cinema for ages. We ... go a lot.
मीन्स क्या है कि हम अभी जो टाइम है या इसमें कोई सेंटेंस में जो दिया गया है, आई हैव बीन टू सिनेमा फॉर एजेस, मीन्स मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया मैं सिनेमा देखने नहीं गया या सिनेमा हॉल या पर जो थिएटर नहीं गया हूँ मूवी देखने। वी डॉट 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 गो अ लॉट, मीन्स हम जाया करते थे कभी, जो पहले था कि उससे पहले हम जाया करते थे, तो उसमें कौन सा ये फिल करेगा गैप को, वर टू, वी वर टू गो अ लॉट, we has to go a lot, we used to go a lot या we are to go a lot। तो 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो भी चीजें यहाँ पे पहले किया करते थे या प्रयोग में लाया करते थे, यूज में लाया करते थे, वहां पे आपका होगा used to, मीन्स we used to go a lot, हम बहुत अधिक जाया करते थे, जहाँ पे यहाँ कॉन्टिन्यूटी की बात आती है, बट अब हम नहीं करते वो चीज, तो उससे रिलेटेड आपको जो करेक्ट आएगा ऑप्शन वो होगा ऑप्शन सी, और यूज टू इज द करेक्ट आंसर। 27 वी हैव ऑन द स्क्रीन, द चाइनीज डॉट 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 इन्वेंटेड प्रिंटिंग। ठीक है, ये सेंटेंस है, ग्रामर से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन, तो आपको बताना है द चाइनीज इन्वेंटेड प्रिंटिंग, द चाइनीज हैव इन्वेंटेड, हैज इन्वेंटेड या हैजंट इन्वेंटेड या नन ऑफ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, आप सभी इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ग्रामर से रिलेटेड हमारा जो पार्ट है, और इसका है द चाइनीज मीन्स हैव, यहाँ पे हो रही पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, चाइना की बात हो रही है, चाइना के लोगों की बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे जो आएगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल लेके आएगा और ये हैव होगा। ठीक है, द चाइनीज हैव इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। नंबर 28 we have here on the screen, the baby has waken up, awaken up, woken up या awakened। तो आपको बताना है बेबी हैज, क्या करेक्ट आंसर होगा, इसमें कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, वोकन अप, 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो वेक, वो वोकन होता है, और द बेबी हैज वोकन अप मींस बेबी को जगाया गया। नेक्स्ट नंबर 29 is, the more Himanshu tried to find excuses for his coming late to his office regularly, the more he, आपको बताना है, was confused, tried, tied the knot, was in a flat spin या cut above others। तो आपको बताना है इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ब जो होगा वो आपका इडियम होगा, वो आपका करेक्ट आएगा, आपको ये बताना है। जितना मीन्स हिमांशु ने जितनी कोशिश की कि मैं कितनी कोशिश में एक्सक्यूजेस फॉर हिज कमिंग लेट ऑफिस, जो रेगुलरली लेट आता था ऑफिस हिमांशु, और वो इतनी कोशिश करता था कि बहुत कोशिश करता था कि कौन सा एक्सक्यूज ले आऊं कि अपने वो रीजन बता सकूं मैं, और किस वजह से मैं रोज लेट होता हूँ। द मोर ही वॉज कंफ्यूज, तो आपको कौन सा इसमें जो इडियम है वो फिल करना है, आपको करेक्ट आंसर बताना है, और उसका जो आंसर है वॉज इन अ फ्लैट स्पिन इज द करेक्ट आंसर। नंबर 30 क्वेश्चन का हमारा जो यहाँ पे है, yesterday at school I dot 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 by the echo of a roar of laughter। तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए आप, कौन सा इसमें गैप को फिल करेगा। yesterday at school I by echo of the roar of laughter मीन्स यहाँ पे जो स्टार्टल का मीन्स होता है चौंकना होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है चौंकना, मीन्स मैं चौंक गया, जब मैं कल स्कूल गया तो मैं इको ऑफ रोर ऑफ लाफ्टर, जो लाफ्टर की हंसी की जो इतनी दहाड़ थी और बहुत ज्यादा आवाज थी, उसके इको से मैं चौंक गया। तो आपको इसका आंसर देना है कौन सा, वॉज स्टार्टेड, वर स्टार्टेड, वॉज स्टार्टेड या वॉज स्टार्टलिंग या होगा वर स्टार्टलिंग। तो करेक्ट आंसर जो है 30 का वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आई वॉज स्टार्टल। ठीक है, तो यहाँ पे गैप में हम जो फिल करेंगे वो हम वॉज स्टार्टल फिल करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। आगे पार्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी, और भी जो इंग्लिश यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको भी कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए ये भी मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।